Hello students, welcome back. Now we are moving to illustration number 2. First adjustment is Ramesh has brought cash of rupees 20,000 and furniture of rupees 10,000 to commence business. To start up new business, Ramesh introduced 20,000 cash and 10,000 furniture. So the effect is cash increases, furniture also increases. Increase in value of asset. Another effect is total of cash and furniture is increases in the value of capital. Capital increased by rupees 30,000, cash 20,000 and 10,000 furniture. So the effect will be increase in asset, increase in capital. There is a no increase decrease in the value of liability. Now second transaction is rupees 5,000 deposited in bank and open account. So the journal entry will be bank account debit to cash. One will be increases, another will be decreases. Here cash deposited in bank, cash goes out from the business, that's why cash decreases. The amount which is deposited in bank, with that amount cash decreases. So reduction in the value of cash. Another furniture as it is and bank अब लिखा जाएगा bank balance and increases. The value of cash decreases and the value of bank increases or written in the column of asset. There is a no change in value of capital and liability. Third one is goods of rupees 8,000 purchased from Rajesh. Credit purchase. The journal entry will be purchase account debit to Rajesh account. So cash as it is because this is the credit transaction, credit purchase. Cash as it is, furniture as it is, बैंक बैलेंस as it is, स्टॉक परचेज किया, बिजनेस में स्टॉक आया, गुड्स आया, so stock increases, asset increases. There is no change in the value of capital and liability increases because here because of credit purchase relation of creditor and debtor arises. क्रेडिट से हमने परचेज किया तो हमें उस दुकानदार को रुपए देने हैं. He is the creditor for business, that's why liability increases. Next is goods of rupees 6,000 purchased for cash. Now cash purchase, so cash decreases because of cash purchase. In exchange of goods business pay cash payment, so cash decreases. Furniture bank as it is and stock increases because of cash purchase. Goods comes into the business, stock पहले जितना था अब हमने परचेज किया so stock will be increased. Clear? Cash would be decreased and stock would be increased. There is no change in the value of capital and liability as well. Clear? Next is goods of rupees 5,000 sold for 9,000 to Raman on credit. 5,000 के गुड्स रमन को क्रेडिट पे 9,000 में बेचे. So the journal entry will be Raman account debit to sales account. क्रेडिट सेल्स की जर्नल क्या होती है? डेटर टू सेल्स. रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो द इफेक्ट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल रमन को क्रेडिट पे सेल किया है तो एक तो स्टॉक क्या होगा? कैश ट्रांजेक्शन नहीं है सो देयर इज अ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ कैश. उसके बाद स्टॉक डिक्रीज विथ विच प्राइस? सेलिंग प्राइस. स्टॉक जो है वो सेलिंग प्राइस से डिक्रीज होगा. स्टॉक है, स्टॉक जो है वो कॉस्ट प्राइस से डिक्रीज होगा विथ कॉस्ट प्राइस. जितने का स्टॉक है हमने कितने में बेचा वो डिडक्ट नहीं होगा. कितने का स्टॉक है एक्चुअली द स्टॉक वाज रुपीज 5,000 सो डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक विथ इट्स कॉस्ट प्राइस.
जितना स्टॉक हमारे पास है उसमें से जो हम सेल कर रहे हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक डिक्रीज, कौन सी प्राइस लेनी है? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है ₹5000, सो डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक 5000। उसके बाद है अब रमन, यहाँ पे डेटर क्रिएट हो रहे हैं, जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, सामने वाला पर्सन बिजनेस के लिए हो जाएगा डेटर। ही वुड पे अमाउंट टू अस, सो इट इज अ रिसीवेबल। रिसीवेबल इज अ असेट फॉर बिजनेस, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर इंक्रीजेस। स्टॉक डिक्रीजेस, डेटर इंक्रीजेस। बैंक फर्नीचर एज इट इज, there is a no change in the value of capital, but यहाँ पे लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। There is a no change in the value of capital and यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल में होगा प्लस। कितना प्रॉफिट होगा? 5000 के गुड्स 9000 में सेल किए, सो 4000 प्रॉफिट इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कौन कौन सी इफेक्ट दी हमने? एक तो स्टॉक में से हमने माइनस की कॉस्ट प्राइस, फिर डेटर्स हमने लिखे विथ सेलिंग प्राइस। यहाँ पे डेटर्स कितने लिखे हमने? सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट लिखा हमने कैपिटल में। उसके बाद का जो एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड फॉर 6000 इन कैश। 3000 के गुड्स जो है वो 6000 में सेल किए। अगेन यहाँ पे कैश सेल है, दैट्स व्हाई कैश इंक्रीज्ड बाय सेलिंग प्राइस। जितना हमें सेल किया है उतनी कैश हमें मिलेगी, तो यहाँ पे कैश में ऐड होगी सेलिंग प्राइस। दूसरा, सेल किया, कैश सेल किया, स्टॉक वुड बी डिक्रीज, सो स्टॉक डिक्रीज विथ कॉस्ट प्राइस। डेटर, बैंक बैलेंस एंड फर्नीचर एज इट इज, अगेन देयर इज अ प्रॉफिट, सो इट इज एडेड टू द कैपिटल एंड देयर इज अ नो चेंज इन लायबिलिटी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 6 एडजस्टमेंट जो है वो उसकी इफेक्ट दी in the column of asset, capital and liability. First था capital introduced, so asset increase and capital also increase. उसके बाद था बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो one asset increase, another asset decrease. उसके बाद था goods of rupees purchased from Rajesh, credit purchase, that's why liability increase and asset increase. उसके बाद था 6000 purchased for cash, one would be increased asset and one would be decreased. Goods of ₹5000 sold to for 9000 to Raman on credit. Credit sales था, one would be increased and another would be, क्या किया हमने? एक तो सेल्स, स्टॉक में से सेल्स माइनस किया, स्टॉक विल बी डिक्रीज्ड। डेटर इंट्रोड्यूस्ड, इट मीन्स डेटर इंक्रीज, एंड कैपिटल में प्रॉफिट को हमने किया ऐड, इंक्रीज इन बोथ असेट एंड स्टॉक डिक्रीज एंड डेटर इंक्रीज एंड द प्रॉफिट गोज टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद था गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड फॉर 6000 इन कैश, कैश सेल था, सो कैश इंक्रीज। उसके बाद स्टॉक डिक्रीज एंड द प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमने 6 एडजस्टमेंट की जो है वो अकाउंटिंग इफेक्ट दी। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो एडजस्टमेंट है उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट हम देंगे। तब तक इसको आप घर पे रिवाइज करते रहिएगा और लिखते रहिएगा, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि किस तरह से ट्रांजेक्शन्स की असेट, कैपिटल और लायबिलिटी में इफेक्ट देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।